اللہ تعالیٰ کے نام کو پاک رکھنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے انسان اللہ تعالیٰ کا نام احترام کے ساتھ لے، بے ادبی کے ساتھ نہ لے۔ دوسرے، انسان اللہ تعالیٰ کا نام خشوع و خضوع کے ساتھ لے، یعنی کہ اس کے اندر خشوع و خضوع کے علاوہ اور چیز نہ ہو، یعنی کہ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الاعلیٰ، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک تلاوت کی ہے۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ: سبح اسم ربک الاعلیٰ، پاکی بیان کر اپنے رب کے نام کی، الاعلیٰ جو سب سے زیادہ بلند و بالا ہے، الذی خلق فسوى وہ ذات جس نے پیدا کیا، فسوى پھر درست کیا، والذی قدر وہ ذات جس نے اندازہ کیا، فہدى پھر اس نے ہدایت دی، والذی اخرج المرعى اور وہ ذات جس نے نکالا چارے کو، فجعلہ غثاء احوى پھر بنا دیا اس کو سیاہ کوڑا۔ سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک تلاوت کی ہے، ترجمہ بیان کیا۔ ماقبل جو ہم نے سورت پڑھی تھی، اس سورت کے ساتھ اس سورت کا جو ربط ہے کہ ماقبل سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجازات آخرت کا ذکر کیا تھا۔ اس صورت میں بھی مقصود اصلی فلاح آخرت کا بیان ہے، اور فلاح آخرت کی جو کامیابی کے طریقے ہیں، جیسے کہ تسبیح کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، نماز پڑھنا، تزکیہ نفس کرنا، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا اس میں ذکر کیا ہے۔ اس صورت کا ایک شان نزول بھی ہے کہ جب پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی بڑی صورتیں نازل ہوئی اور بے شمار علوم و معارف کا فیضان شروع ہوا، تو دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے تو یہ صورتیں کہیں لکھی نہیں ہیں، تو میں کہیں بھول نہ جاؤں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور تسلی دینے کے بعد یہ صورت کو نازل کیا کہ آپ اس طرح کی پریشانی یا ٹینشن نہ لیں، آپ کو یاد کروانا وہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا کام ہے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے مسلمان اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کیجئے۔ تسبیح، سبح یعنی کہ تسبیح کا معنی ہوتا ہے پاک رکھنا، پاکی بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے نام کو پاک رکھنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے انسان اللہ تعالیٰ کا نام احترام کے ساتھ لے، بے ادبی کے ساتھ نہ لے۔ دوسرے، انسان اللہ تعالیٰ کا نام خشوع و خضوع کے ساتھ لے، یعنی کہ اس کے اندر خشوع و خضوع کے علاوہ اور چیز نہ ہو، یعنی کہ بہت اپنے آپ کو جھکا کر عاجزی کے ساتھ وہ اپنے رب کو پکارے، تکبر نہ ہو۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ کو انہی ناموں سے پکارا جائے جو اللہ تعالیٰ نے خود بتلائے ہیں یا پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے۔ اس کے علاوہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کو کسی بھی اور ناموں سے نہیں پکارنا چاہیے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو خاص نام ہیں، کیا اب ان کا استعمال مخلوق کے لیے جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ تو ان کا استعمال مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اللہ کے علاوہ الرحمن، الرحیم، صحیح، الکریم نام ہے، الرزاق نام ہے۔ اب یہ نام ہم کسی کا نہیں رکھ سکتے۔ ہاں،
इनको रखने के लिए इसके माक़बल में या माबाद में किसी चीज़ का इजाफा करना पड़ेगा। जैसे हम अब्दुल रहमान कह सकते हैं, हम अब्दुल रहीम कह सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जो हैं यानी कि किसी को रहमान नहीं बुला सकते, किसी को रहीम नहीं बुला सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये अल्लाह ताला के साथ ख़ास है, इसमें तक़दीस का मामला है इसलिए। और बाद मुफस्सरीन ने यह भी कहा है कि सब्बिह इस्मा, जो इसम इसके अंदर आया है, ये लफ्ज़ इसम जो है ये ज़ायद है, यानी कि इसका मतलब फिर ये होगा कि अपने रब की ज़ात की तस्बीह और तक़दीस करें। यानी कि यहाँ तो तर्जुमा ये बन रहा है ना कि रब के नाम की, यहाँ कि रब की ज़ात की क्या करनी चाहिए? तस्बीह बयान करनी चाहिए और उनकी तक़दीस करनी चाहिए। कि अब वो क्या होगी? वो ये होगी कि अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो शिरक से पाक है। अल्लाह ताला की ज़ात के साथ हमने शिरक नहीं करना। अल्लाह की ज़ात जो है वो औलाद से पाक है। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो एहतियाजी से पाक है। इन सारे चीज़ों की अल्लाह ताला की ज़ात के अंदर किसी किस्म का कोई नक़ाइस व अयूब नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात इससे भी पाक है। तो ये हमें अल्लाह ताला की तक़दीस करनी चाहिए और अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करनी चाहिए। अल आला, यहाँ से अल्लाह ताला अपनी सिफ़ात का बयान कर रहे हैं जो आगे तक चल रही हैं। इसमें सबसे पहली सिफ़त है अल आला के, और ये तस्बीह बयान करने की यानी कि इल्लत भी जिक्र की गई कि क्यों हमने उस ज़ात की तस्बीह बयान करनी है। तो उसकी इल्लत यह है क्योंकि अल आला, अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो सबसे बुलंदो बाला है। जो अल्लाह ताला की शान है वो सबसे बुलंदो बाला है। इसलिए अल्लाह ताला की जब ज़ात सबसे बुलंदो बाला है तो वो मुस्तहिक है कि तमाम की तमाम उम्मत जो है, तमाम के तमाम लोग जो हैं वो अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करें, उसके साथ किसी किस्म का कोई किसी को शरीक ना ठहराएं। इन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। आगे दूसरी सिफ़त अल्लज़ी खलक़ा, वो ज़ात जिसने पैदा किया। अब हर चीज़ को पैदा करने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह ताला की ज़ात है। खलक, असल खलक का मतलब होता है कि किसी शय को अदम से वजूद में लेके आना बग़ैर मादा के, यानी कि किसी के पास कोई उसका नक्शा मादा मौजूद नहीं है फिर भी उसको अदम से वजूद में ले आए। अब ये इंसान के लिए तो मुमकिन नहीं है। किसके लिए मुमकिन है? अल्लाह ताला की ज़ात के लिए ही मुमकिन है। अब ये इंसानों के लिए तो मुमकिन नहीं है। मुमकिन किसके लिए है? अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, कि जो इंसान हैं अगर उनको कोई चीज़ अदम से वजूद में लानी भी है तो वो बग़ैर मादे के नहीं ला सकते। कौन सी ज़ात ला सकती है? सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही ला सकती है। फसवा, तस्विया से ये मुश्तक है जी, इसका मतलब होता है बराबर करना। मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को, जो अल्लाह ताला ने चीज़ बनाई उसको एक वजूद अता फरमाया, और वजूद जो अता फरमाया फिर उसमें अंदर चाहे वो इंसान है चाहे हैवानात हैं, उसके अंदर उनकी जो जिसामत है उसके हिसाब से उनको रखा। ये नहीं कि किसी को जो है ना 2 मुंह दे दिए, ये नहीं कि इंसानों को जो है ना 10 उंगलियां दी, नहीं। जो इंसानों को चाहिए था, जैसे उनकी ज़रूरत थी, अल्लाह ताला ने बराबर सराबर उनको बनाया। खूबसूरत अल्लाह ताला ने जो है ना इंसानों को और जानवरों को पैदा किया, बल्कि जितने भी अल्लाह ताला की मखलूक है। वल्लज़ी क़द्दरा, ये क़द्दरा तकदीर से मुश्तक है। इसके 2 मतलब हैं। पहला इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ को अंदाज़े पर बनाना, जैसे अभी हमने माक़बल में किया ये तस्वीया वाला, कि अल्लाह ताला ने इंसानों को अंदाज़े के मुताबिक बनाया, कि जो चीज़ की जितनी ज़रूरत थी उतनी ही बनाई, उससे ज़ायद नहीं रखी ना उससे कम रखी। दूसरा जो इसका मतलब है क़द्दरा से, उसका फ़ैसला करना, यानी कि इसका क्या मकसद होगा कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को बनाया है या किसी चीज़ को बनाया तो उसके लिए फ़ैसले कर दिए कि इसने दुनिया में जाके क्या करना है, क्या नहीं करना, इसकी क्या ड्यूटी है, क्या ड्यूटी नहीं है, कितना अरसा इसने दुनिया में रहना है, क्या इसने कमाना है, कितना इसने लेके आना है। अल्लाह ताला ने उस इंसान के लिए सारे फ़ैसले कर दिए। और यही इस जो है वल्लज़ी क़द्दरा का ये बेहतरीन मतलब भी, इसकी अगर यही तफसीर करें तो यही इसका बेहतरीन तर्जुमा भी है। चौथी चीज़ है जी फ़हादा। मकसद ये है कि खालिक कायनात ने जिस चीज़ को जिस काम के लिए पैदा फरमाया है फिर उसको उसकी हिदायत भी फरमा दी। यही माक़बल वाली तरीका बतला दिया कि आपने क्या काम करना है दुनिया में जाके, उनको तमाम की तमाम काम करने की हिदायत जो है वो जारी कर दी। और चाहे फिर वो आसमानी मखलूक़ात हों चाहे वो दुनियावी मखलूक़ात हों, अल्लाह ताला ने तमाम को शऊर दे दिया कि उन्होंने दुनिया में आने के बाद क्या काम करने हैं और क्या काम नहीं करने।
वल्लदी अखरजल मरअ फजअलहु गुसाअन अहवा। इस आयत करीमा में कुदरत का बयान है कि अल्लाह ताला की ज़ात कैसी कुदरत वाली ज़ात है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने ज़मीन के अंदर बारिश की, बारिश के बाद ज़मीन से सब्ज़ा निकाला, उसके अंदर से घास निकाली जो सरसब्ज़ व शादाब थी, उसको घास निकालने के बाद कुछ मुद्दत बाद उसको फिर क्या कर दिया, फजअलहु गुसाअन अहवा, यानी कि उसको स्याह कूड़ा बना दिया। तो अल्लाह ताला असल में ये बात करके इंसान को उसके अंजाम से बाखबर करना चाह रहे हैं कि जो इंसान अपनी जवानी के ऊपर, अपने पैसे के ऊपर तकब्बुर कर रहा है ना, अल्लाह ताला उसको बताना चाह रहे हैं कि जैसे ज़मीन को हमने सरसब्ज़ व शादाब बनाया, फिर कुछ अरसे बाद हमने उसको स्याह कूड़ा बना दिया, तो ऐ इंसान अपने अंजाम पर भी नज़र रखो, तकब्बुर ना करो। तकब्बुर करने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। इंसान तकब्बुर ना करे। क्यों? अगर अल्लाह ताला एक सरसब्ज़ व शादाब ज़मीन को स्याह कूड़ा बना सकता है तो फिर इंसान को भी अल्लाह ताला जो है वो जब बुढ़ापे में जाएगा तो वो हर चीज़ से जो उसकी जवानी है, उसका लड़कपन है, उसकी जो पास जो माल दौलत है, वो उसके फिर किसी काम नहीं आनी, उसने साइड पे होके बैठ जाना है। इसलिए ये इस आयत के अंदर हमें किस चीज़ का सबक है कि हमें तकब्बुर नहीं करना चाहिए, हमें फन्ने खा नहीं बनना चाहिए, हमें आजिज़ी और इनकिसारी के साथ रहना चाहिए और आजिज़ी और इनकिसारी के साथ ही अल्लाह ताला का ज़िक्र करना चाहिए, अल्लाह ताला को याद करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पर अमल करने की सही तरीके से तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। दीनी और दुनियावी मालूमात के लिए इस चैनल मोहम्मद उसामा शाह अलवी को सब्सक्राइब करें।